ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں۔ ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں۔ کب تک ہم نے یہ خون خرابہ دیکھنے کو ہوگا؟ کب تک اس بربادی کو دیکھتے جاتے ہیں، اس کا انت نہیں دیکھتے؟ جب امن کی ہوا آنے لگتی ہے، ابھی وہ ہوا پہنچی نہیں ہوتی ہے کہ بربادی کی ہوا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کیا امیدیں تھیں؟ پلوامہ ہوا، اس کے بعد پہلگام ہوا، اس کے بعد اب دہلی ہوئی۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ نوگام انسیڈنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پولیس تھانے میں 300 کلو کا RDX ہونا، رات کے ٹائم میں اس کی فورنسک لیب انویسٹیگیشن ہونا۔ دیکھیں، پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں، جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کب؟ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے۔ جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے کیوں ان ڈاکٹروں کو ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ It needs a thorough study and investigation. نیا نام سننے کو ملا ہے، چونکہ 7 ڈاکٹرز کی اس میں انوالومنٹ، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کا مکان بھی زمین بوس کرتی، وائٹ کورل ٹیررزم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ حضور، آپ وائٹ ٹیررزم کہیں، ریڈ ٹیررزم کہیں، ٹیررزم ہے۔ ویسی وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ اپنی جان بھی دینی پڑی اور اتنا بڑا ایکسپلوژن کر کے بے گناہوں کو مارنا پڑا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہی صرف نہیں ہے، ہمارے کتنے بچوں کو آج مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے یہ چیزیں، اسی لیے باہر پڑھ رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بنا سکیں، وطن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ مگر آج ہر کشمیری پہ نشان ہے کہ آسامی پہ ہوتا ہے جب وہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے، یا چھتیس گڑھ میں ہوتا ہے۔ کہیں تو سوال یا نشان سیکورٹی ایجنسیز پہ ہے، کیونکہ 300 کلو فرید آباد میں ہونا اور 3 مہینے سے بندہ وہاں رہ رہا ہے، اس کی صاحب ہر چیز میں کیا بتاؤں آپ کو، کہیں نہ کہیں ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں۔ ان کو تو مارنا پڑے گا،
ईडी पीडी को इस्तेमाल करने के बजाय छोड़ दीजिए और ये देखिए, अपनी इंटेलिजेंस विंग को मजबूत कीजिए कि उससे हम लोग इस मुश्किल से निकल सकें। कब तक हमने ये खून खराबा देखने को होगा? कब तक? यहाँ चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हमारा बन चुका है जम्मू कश्मीर का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लास्ट टाइम ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में जो 370 की बात हो रही है या जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड है वो सिचुएशन देखकर बताया जाएगा। ये हालात उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? कैन इट इज पॉसिबल? मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। वो जब भी चाहेंगे ब्लास्ट करेंगे, जब चाहेंगे हमें लटकाएंगे। तो क्या मिला वतन के साथ रहकर? यही बदहाली। इलेक्टेड गवर्नमेंट को 1 साल हो गया, ड्यू टू द बिजनेस रूल्स काफी हर्डल्स आ रही है। सिर्फ एक पॉजिटिव काम इस साल देखने को मिला है, शिफ्टिंग द दरबार। वो इसलिए भी करना पड़ा, अगर नहीं करते तो बीजेपी का जनाजा जम्मू में निकल जाता। बीजेपी ने कोशिश की थी कि हिंदू और मुसलमान को अलग करेगा, और उसने जम्मू को बेहद नुकसान पहुंचाया और कश्मीर को नुकसान पहुंचाया, हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। इसे करना पड़ा। तो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात करवटें ले रही है या यहाँ पर देखिए अक्रॉस द बॉर्डर इसका। देखिए, मैं आपसे कहूंगा, नाउम्मीद तो कभी किसी को होना नहीं चाहिए। अगर हमने नाउम्मीद होना है तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। हमें उम्मीद करनी है कि रास्ता निकलेगा जब ये उस तरफ कुछ सोचेंगे। वो वतन भी जो हमारा नेबर है, वो कब तक ये करता रहेगा? कब तक? उन्हें भी सोचना चाहिए। वो तो ऐश में बैठे हुए हैं, और हर मुसलमान पे यहां पे वो कुछ करते हैं तो निशाना बांधा जाता है। जिम्मेवार वो हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो कभी पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बने। बिहार में महागठबंधन फिर फेल, एनडीए की वहां पर जीत, नीतीश कुमार तकरीबन 11वीं बार। मुझे खुशी है, हमारी गलतियां कहीं होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं लोगों में हम लोग और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। कोई वजह तो होगी। बिहार के नतीजों में किस तरह आप मुतमईन हैं जो कल रिजल्ट बिहार में आए? रिजल्ट तो आ गए, लोगों ने हुकूमत बना दी। नीतीश कुमार, अल्लाह करे कि वो ठीक करे, लोगों के लिए काम करे, उन लोगों से इंसाफ करे। वहां जो मुसलमानों को निकाला जा रहा था, वोटों से खारिज किया जा रहा था, उसकी तरफ वो तवज्जो दे। क्या इसमें नीतीश कुमार का इंडिविजुअल रोल है या बीजेपी का इसमें प्रॉपर दायित्व है? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं। मैंने कोई भी वहां पे दिन नहीं गुजारा जिसके बारे में मैं कह सकता हूं वहां क्या है। जो वहां के हैं, जो वही कह सकते हैं इसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 दहाइयों के बाद बड़गाम में सेटबैक मिला, कल जो पीडीपी की वहां जीत हुई। देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए, इससे इंसान सीखता है, घबराता नहीं है। हार से इंसान सीखता है, और जहां कमियां उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़गाम पर काफी नजरें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हर चीज पे हमारी नजरें अच्छी हैं, जम्मू में भी हमारी नजरें अच्छी थी। नहीं, क्या बड़गाम में ये भी रीजन कहा जा सकता है कि जो रूहुल्लाह का रिफ्ट चल रहा है? अब ये जमातों में हो जाता है,
अल्लाह करे कि रोला साहब समझे वो जीते हैं या हारे हैं। जिस जमात ने उसे जमीन से उठाया, मिनिस्टर बनाया, जिस जमात ने उसे पार्लियामेंट पहुंचाया, आसान नहीं है। इसे उस जमात की कदर करनी चाहिए। आखिरी बात यह अब उस तक है। आखिरी बात पूछना चाहूँगा, मौजूदा सूरत हाल चाहे दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या आज जो यहाँ सिचुएशन है, आने वाले टाइम में खुदा न खास्ता फिर से हमें वो ऑपरेशन सिंदूर वाला माहौल दिखता है? मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, कि वही एक रास्ता है। वाजपेयी जी की बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की सुस्त हो जाएगी। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस की जो हालत है उसमें काफी सुधार करना पड़ेगा। ये शायद कल उनको बिहार वो तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा। मैं तो कांग्रेस ही नहीं हूं। मेरा तो सिर्फ उनसे यही कहना पड़ेगा कहा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इन हारों से हमें सबक सीखना चाहिए और जहां हमारी गलती है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। 20 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था इस टाइम बडगाम की हिस्ट्री बदलेगी, और कल उसने कहा हमने हिस्ट्री बदल डाली। कौन सी हिस्ट्री बदली? एक सीट जीत के बदल दी हिस्ट्री? क्या भूल गई किनके साथ बैठी हुई थी? भूल गई? भूल गई किस तरह धक्का दिया उसको? भूल गई वो? क्या आज भी उन्हीं के साथ बैठना चाहती हैं? मेरी तरफ से मैं एक बाप की तरफ से कहता हूं, पहले यहां के वतन के लोगों की सोचो। तुम अगर ये समझती हो कि तुम कुर्सी हासिल करोगी, ये लोग जानते हैं तुमने क्या किया है। पहले उसकी प्रायश्चित करो और अल्लाह से मांगो सही रास्ता। नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत